So let's begin with the next topic, that is combination of spring. So in combination of spring, we have two parts actually, in which first one is number one, which we'll write down springs in series. Springs in series. Springs in series means they are attached to each other in a series format. Okay, sorry, series format, and secondly, we'll connect the springs in parallel. Okay, springs in parallel. So in these two parts, it is divided: springs in series and springs in parallel. So first of all, what we'll see in combination of springs, a number of springs of different spring constant can be combined in series. See what this says, that number of springs can be attached or connected like in series. This one is spring, first spring of spring constant K1 and second spring, let's say K2. Then if you want to connect more springs, then you can also connect more springs like K3. So these are the spring which is connected in series, and they also can be connected in parallel. When I say parallel, that means they are connected between 2 points. Like, let's say this one first point is present on this ceiling. Okay, this whole ceiling can be considered as a point, and second point is somewhere over here. So there we are applying a force F like this. So these are the 2 points. These 2 points are being connected, or we are going to connect the spring between these 2 points like this way. Okay, so that the force will get divided between two. The force will get divided in this kind of situation, half up to each of the spring. Let first spring has a spring constant K1, and let second spring will have a spring constant K2. Here if you'll apply any force, in the first case if you'll apply the force, that force will remain same for every spring, means same force will act on each of the spring as they are connected in series. And in parallel, what happens in parallel, the force get divided between the springs as they are connected between the two same points. Okay, so in this series kind of thing, you can see that the springs are connected one after the other, forming a single chain. It will look like a single chain. Okay, and consider arrangement of two such spring. If you'll consider this arrangement of two such spring, let me clear it that for to draw just, or you can draw over, you can see over here. Let's say if I'm connecting two springs only, this one is the first spring of spring constant K1, and it is connected to a rigid support, and the second spring is just connected after it like a chain wise in manner. So second spring has a spring constant K2. Okay, so they are connected one after the other. Springs are massless. You have to note down that these springs have no mass. Then only this formula which we are going to derive can be applicable. Each will have the same stretching force. So I am stretching it with the help of a same force F. So let's say if we stretch it by the force F, for horizontal arrangement as well as for the vertical arrangement. So I have to draw the vertical arrangement also. So vertical arrangement will be look like this. This is the first spring, and then the second spring is connected chain wise manner, series wise manner, like this. And if you connect the weight of mass something m over here, so the weight will be mg, and the same force will act on these two springs. Okay, in upward direction force generate होगा दोनों spring में. तो first spring में k1 constant, second spring का k2 constant, तो जो force act कर रहा है वो mg. So this is the arrangement in the vertical line. It will be, so it will, after applying the force, both spring will have some extension in them. Okay, so let's say the extension in first spring जब इनको खींचा, तो let's say कि ये stretch हो गई E1 extension से, elongation से इतना वो stretch हो गई, और second वाली जो है वो stretch हो गई E2 elongation से. Okay, so both got stretched due to E1 and E2 elongation due to force F. We know that force is directly proportional to x. x मतलब क्या, elongation है ना. तो x को हमने यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट किया है, e से. तो हम क्या लिखेंगे कि e जो है वो एक्सटेंशन है, हमने स्ट्रेच किया, हमने x डिस्टेंस से स्ट्रेच किया था. अभी x को हम क्या लिख रहे हैं, e1. e1 मतलब इलोंगेशन. ओके, इलोंगेशन का e यूज किया हमने. डिस्प्लेसमेंट x की जगह हमने क्या यूज किया, इलोंगेशन, क्योंकि हम किसी ब्लॉक को नहीं डिस्प्लेस कर रहे, हम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे, स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे, इसलिए e1. तो फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, बीच में आता है कांस्टेंट है ना, के ई.
तो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स तो के एफ लगा ही रहे हम, मगर स्प्रिंग K1 के लिए इलॉन्गेशन कितना होगा E1, और स्प्रिंग K2 वाली स्प्रिंग के लिए इलॉन्गेशन कितना होगा E2। तो यू नो कि फोर्स सेम है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, K1 E1 इज इक्वल टू K2 E2। ओके, तो इससे तुम डिराइव कर सकते कि E1 इलॉन्गेशन का फॉर्मूला होगा F अपॉन K1, है ना, और E2 इलॉन्गेशन का फॉर्मूला होगा F अपॉन K2। ओके, सो व्हाट इज द नेट इलॉन्गेशन, अगर मैं पूछूं कि पूरा दोनों का मिला के, देखो ये और ये मिला के स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी ना खींचेंगे तो दोनों का मिला के जो नेट इलॉन्गेशन होगा वो क्या होगा, E1 प्लस E2। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E1 प्लस E2, E1 और E2 की वैल्यू में दोनों में देखो क्या कॉमन है, E1 और E2 की वैल्यू में कॉमन है F बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस K1 अपॉन 1 प्लस K2। ओके, तो ये दो इलॉन्गेशन, दोनों के इलॉन्गेशन ऐड कर दिया हमने तो हमको मिला F अपॉन F इंटू K1 प्लस K1 अपॉन K2। नाउ अगर मान लो मुझे यही फॉर्मूला देख के, अगर मुझे यही फॉर्मूला देख के, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू, लेट मी क्लियर दिस थिंग्स फर्स्ट, देन आई विल go to the next topic. Okay, means the further rest of the topic. So here I've just arranged the derivation which we have done. That extension x था तो उसको elongation बोलते समय हमने e लिखा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि दोनों में सेम फोर्स एक्ट कर रहा है F, तो K1 E1 इज इक्वल टू K2 E2, और E1 का फॉर्मूला क्या है, F अपॉन K1 फ्रॉम दिस इक्वेशन, एंड E2 का फॉर्मूला आया F अपॉन K2। ओके, सो हमने दोनों का नेट इलॉन्गेशन ये निकाला, दैट इज E1 प्लस E2 इज इक्वल टू F 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, क्योंकि दोनों में फोर्स कॉमन था, दोनों फॉर्मूले में, तो फोर्स को कॉमन करने के बाद क्या बचा हमारे पास, 1 प्लस K1 और 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। सो by this theorem what we got actually, that is the net elongation we got, and net elongation का एक फॉर्मूला और हो सकता है, if you can see relating from this, फोर्स तो F ही एक्ट कर रहा है ना, अपॉन में क्या आना चाहिए, दोनों का मिला के K1 K2 की जगह पूरे इसका मिला के एक ही स्प्रिंग बना रहे हैं ना, एक ही नेट, मतलब क्या हुआ कि दोनों का मिला के एक्सटेंशन, तो दोनों का मिला के स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, K नेट, समझ में आ रहा है। तो इसलिए सेम फॉर्मूला, जैसे कि E का फॉर्मूला आ रहा था F अपॉन, यस, E का फॉर्मूला क्या आ रहा था हमारे पास, F अपॉन K, तो वैसे E नेट का फॉर्मूला क्या आएगा, F अपॉन K नेट। K नेट यहाँ पे हमने सीरीज में कनेक्ट किया, इसलिए उसको K नेट की जगह क्या लिख रहे हैं, K सीरीज, सीरीज का S लगाया। ओके, तो अब मुझे बताओ कि E नेट का फॉर्मूला क्या बना, F अपॉन KS, तो ये F और ये F क्या हो गया, कैंसिल, तो इससे बताओ तो 1 अपॉन KS की जगह पे क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन KS की जगह पे बचा हमारे पास 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ओके, गॉट इट। सो हमारा जो एक्चुअली जो हमारा Ks आया, स्प्रिंग कांस्टेंट 1 अपॉन Ks की वैल्यू आई, दैट इज 1 अपॉन K1 प्लस K2। अगर मान लो कि हमारे पास बहुत सारी स्प्रिंग होती है, n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स होती, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, ऐसे कितनी स्प्रिंग्स हम कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में, n नंबर ऑफ, तो इसलिए उसको डॉट 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 करते हम 1 अपॉन Kn कर सकते हैं। ओके, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज कि हमने जो Ks, देखो अभी हमने K1 अपॉन Ks की वैल्यू निकाली थी। ओके, तो Ks की वैल्यू जो आएगी ना, वो अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपली आएगी, अगर 2 स्प्रिंग के लिए है कनेक्शन तो K1 इंटू K2 अपॉन K1 प्लस K2 आएंगी। अगर सिंपली ये 2 स्प्रिंग्स के लिए, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको तो आपको Ks की वैल्यू क्या मिलेंगी, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और अगर मान लो कि आपके पास n नंबर ऑफ स्प्रिंग और सबके सब आइडेंटिकल है, मतलब n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल, सेम टू सेम, तो सबका क्या सेम होगा, K सेम होगा ना। तो आइडेंटिकल स्प्रिंग के लिए, आइडेंटिकल स्प्रिंग के लिए सबका K जो है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो सेम होगा। तो इसलिए हम जब K नेट निकालेंगे, Ks निकालेंगे, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन का K निकालेंगे, मतलब सबका मिला के जो नेट क्या आएगा वो निकालेंगे, तो वो हमको क्या मिलेगा, K अपॉन n। याद रखो, ये सॉल्व करेंगे आप तो फॉर्मूला क्या आएगा, K अपॉन n। ऐसा कैसे होता है तो आप देख लो, 1 अपॉन Ks है और मान लो सब स्प्रिंग का K सेम है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन K, ऐसा कितने तक चलेगा, n नंबर ऑफ K तक, तो मतलब n अपॉन K, है ना। तो अभी मुझे बताओ कि ऐसे n नंबर ऑफ K तक चलेगा, तो हमारे पास जितने भी K होंगे, n Ks होंगे, तो हम उसको लिखते रहेंगे, तो हमारा कितने टाइम्स आ जाएगा वो। एक्चुअली इसको ऐसा लिखना नहीं चाहिए, यहाँ n लिखना गलत है, क्योंकि हमारे पास तो n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स अवेलेबल है ना, तो उसको 1 अपॉन K ही लिखा जाएगा, मगर
एन टाइम्स में भी तो लिख सकते हैं ना शॉर्ट करके कि भाई हमारे पास 1/k कितने टाइम्स लिखना है हमको, एन टाइम्स, मतलब एन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है तो एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, तो 1/k कितने टाइम्स लिखा जाएगा, एन टाइम्स। तो बताओ तो के एस की वैल्यू इससे क्या आई, के एस की वैल्यू आई इससे के अपॉन एन। तो इस तरीके से के अपॉन एन जो है के एस का फॉर्मूला आया हमारे पास। ओके, गॉट इट। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल, वन मोर थिंग दैट दिस कैन बी आल्सो रिटन एज विद द हेल्प ऑफ समेशन साइन, मतलब जितने भी केस है उसको कहां से कहां तक, 1 से लेकर n तक पूरे ऐड कर सकते हैं। लाइक इन रोटेशनल मोशन वी हैव रिटन दिस समेशन फॉर्मूला, वैसे यहाँ पे n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है तो 1 से लेकर n तक जो है जितनी भी स्प्रिंग्स है सबको ऐड कर सकते हैं हम, जिसमें से i किसके लिए स्टैंड है, i इंटीजर के लिए स्टैंड है, इंटीजर मतलब नंबर ऑफ स्प्रिंग, वो 1 से लेकर n तक पूरी स्प्रिंग को जो हम ऐड कर सकते हैं ना। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन चालू कर सकते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हाट यू विल सी कि अगर जैसे मान लो कि एक सीलिंग से हम उसको हैंग कर रहे हैं, वॉल से ना हैंग करते हुए, तो सीलिंग एक पॉइंट का काम करेंगी और उसके बाद आप n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। राइट नाउ जस्ट आई एम टेकिंग 2 स्प्रिंग कनेक्टेड टू द सीलिंग, तो सीलिंग जो है वो एक पॉइंट हो गया जिसपे स्प्रिंग के एक एक एंड हमने कनेक्ट कर दिए, और जो दूसरा एंड है वो हम एक किसी मास से कनेक्ट कर देंगे, दैट इज कॉमन मास से। तो ये जो वेट है mg, ये दोनों स्प्रिंग पे काम करेगा, बट इसकी वैल्यू जो ईच स्प्रिंग के लिए आधी आधी हो जाएंगी, मतलब दोनों मिल के उस ब्लॉक को संभाल रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, mg/2 वेट जो इसके ऊपर एक्ट करेगा, और mg/2 मतलब वेट की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों स्प्रिंग में। लेट्स से जैसे कि अभी हम इसको और भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास ये पूरी एक वॉल, ये वॉल है, ठीक है। हम ये दो वॉल को एक ही पॉइंट कंसीडर करके चलेंगे क्योंकि वो अल्टीमेटली है तो वॉल ही। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो अदर एंड है वो एक ब्लॉक को कनेक्ट कर देंगे। तो देखो इसके दो पॉइंट, जैसे ये स्प्रिंग के एक एक पॉइंट आप देखो तो वॉल पे कनेक्ट है और एक एक पॉइंट कहाँ पर कनेक्ट है, कॉमन मास पर। फिर हम ये मास को थोड़ा सा खींचेंगे और छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीलेट होने लगेगा आगे पीछे स्प्रिंग फोर्स की वजह से। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि फोर्स जो है ना वो डिवाइड हो जाता है, जो भी फोर्स हम लगाते हैं वो डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लो कि इसको हमने एफ फोर्स लगा के खींचा, तो फोर्स क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा दोनों में, F/2 क्योंकि दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप ऐसे एन सीरीज भी लगा सकते हैं। ओके, तो होता क्या है बेसिकली पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सच कॉम्बिनेशन ऑल द स्प्रिंग आर कनेक्टेड बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड वन ऑफ देम इज सपोर्टेड एंड अदर एंड इज stretched, मतलब अदर एंड हम खींचते हैं फोर्सेप्स से। ओके, irrespective of their spring constant, now there you have to mention the spring constant also. What is mean by respective spring constant, मतलब दोनों का कोई भी स्प्रिंग कांस्टेंट हो, फोर्सेस तो आधे आधे डिवाइड हो ही जाएंगे, दो स्प्रिंग है तो। ओके, जैसे पहले वाले का K1 और दूसरे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K2। ओके, सो नाउ लेट्स से कि इन दोनों को अगर हम खींचेंगे, चाहे फर्स्ट केस हो चाहे सेकंड केस हो, दोनों में अगर हम ब्लॉक को खींचेंगे तो तुम एक चीज देखोगे कि दोनों में ही इलोंगेशन सेम हुआ है। ओके, जैसे कि इसमें मान लो कि यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई तो इलोंगेशन कितना हुआ, ई। इसमें भी देखो जितना ये दबेंगी पहले वाली स्प्रिंग या ऐसे बोल दो सेकंड वाली स्प्रिंग जितनी दबेंगी उतनी ही पहली वाली स्ट्रेच होंगी, तो एक्सटेंशन को हमने ई से बताया, आप चाहो तो एक्स से भी बता सकते हो, डजंट मैटर। ओके, so now what I would like to tell you, the spring now share the force such that the equilibrium position, the total restoring force is equal to and opposite to the stretching force. Now what I have said, if this stretching force will be equal to restoring force, जैसे कि आप इसको जब स्ट्रेच करोगे तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेंगी तो स्प्रिंग में जो फोर्स आएगा वो कौन सा फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स में आप देख सकते हो कि दोनों में क्या सेम आया, E/K1। देखो फोर्स तो डिवाइड हो जाएगा भाई दोनों में, है कि नहीं, दोनों में हाफ हाफ फोर्स तो डिवाइड हो ही जाएगा वैसे भी, मगर दोनों में क्या सेम रहेगा, ये इलोंगेशन है ना। जैसे कि हम फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं इलोंगेशन इंटू के या के इंटू इलोंगेशन, जैसा आपको लिखना हो, ध्यान में आ रहा है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलोंगेशन, तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के ई। ओके, तो वहां से फॉर्मूला हमने उठा के लिखा है, एफ इज इक्वल टू के ई या ई के, जो भी आपको लिखना हो। ओके, तो वो जब हम खींचते हैं इसको x इलोंगेशन से e इलोंगेशन से, तो उसके बदले में हमको कौन सा फोर्स आता है, इक्वल एंड अपोजिट रिस्टोरिंग फोर्स आता है। तो लेट्स से कि पहली स्प्रिंग में आपका रिस्टोरिंग फोर्स आया F1, मगर इलोंगेशन तो दोनों में सेम है तो E सेम रहेगा, मगर पहली स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या आएगा, K1। दूसरे वाले में मान लो कि F2 फोर्स लगा, मान लो जस्ट कि F2 फोर्स लगा, तो उसमें इलोंगेशन कितना आएगा, सेम ही चाहेगा भाई, क्योंकि अभी बताया मैंने कि दोनों स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट है, तो क्या सेम आता है, इलोंगेशन, तो आ जाएगा E/K2। ओके, और ऐसे करते करते आपको क्या करना है, आपको नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा भाई आपके इसमें, नेट फोर्स आ जाएगा आपका
E इंटू, देखो दोनों में क्या कॉमन है, E है ना, तो आ जाएगा E इंटू K1 प्लस K2। अगर आपकी n नंबर ऑफ स्प्रिंग होती तो आप आगे भी और भी ऐड कर सकते थे, n नंबर ऑफ स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल। सो F नेट का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, E इंटू K नेट ना, हमारा करेक्ट है ना। अगर दोनों को मान लो, ये दोनों स्प्रिंग को हटा के अगर मैं एक ही स्प्रिंग लगा बनाता जो कि इन इन दोनों, ये पूरे सिस्टम के इक्विवेलेंट होती, मतलब बिल्कुल जो असर वो दिखा रहा, वो सिस्टम दिखा रहा, वही असर ये स्प्रिंग दिखाती, तो इसका जो भी के होता वो तो इन दोनों के K1 और K2 के बराबरी का होता ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, के नेट। और यहाँ हम बोल सकते कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो वो दोनों पैरेलल में जो काम कर रहे हैं वो अकेली ये स्प्रिंग काम कर रही है पैरेलल, तो इसलिए हम इसको केपी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या दे रही है हमको, इफेक्ट दे रही है यहाँ पे। ओके, सो केपी जो है, हमने के नेट को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, केपी, केपी मतलब पैरेलल, और वो इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये ऊपर की इक्वेशन जो हमको दी हुई है, दैट इज ई इंटू K1 प्लस K2। तो ये ई क्या हो जाएगा, दोनों का कैंसिल है ना, एंड व्हाट यू विल गेट इन रिजल्ट, केपी इज इक्वल टू, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन मिल के जो इफेक्ट दिखाता है वो होता है K1 प्लस K2। इफ मान लो कि एन नंबर ऑफ होती है स्प्रिंग्स अगर आपकी पैरेलल में कनेक्ट, तो आप उसको प्लस के एन तक स्ट्रेच कर सकते हैं। मतलब अगर उसको शॉर्ट में लिखना तो कैसे लिखोगे, समेशन लिखोगे ना, किसका समेशन कर रहे हैं, के का, के सामने क्या लगाओगे, आई, आई का मतलब इंटीजर, मतलब 1 से लेकर n तक जितने भी स्प्रिंग है सबको ऐड कर देंगे। मान लो अगर सबकी वैल्यू सेम हो, K1 K2 जितनी भी स्प्रिंग के कॉन्स्टेंट है सबकी वैल्यू अगर सेम हो, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा पैरेलल का, n टाइम्स ऑफ k। हिसाब मान लो कि n नंबर ऑफ अगर k है हमारे पास, तो जितने भी n नंबर 2 3 जितने भी स्प्रिंग है उन सबको क्या कर सकते हैं हम, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे मतलब n टाइम्स स्प्रिंग है तो n टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, तो n टाइम्स हो जाएगा k है ना, तो इसलिए kp इज इक्वल टू क्या आ गया, n into k। so this is the combination taken for parallel, and this is the k net for this formula, and that is how it is solved. So rest of the topic we'll see in the next lecture. Thank you.